Bismillahirrahmanirrahim. Uh, it's our lecture number 5 after the midterm examination. As we were discussing about the heat transfer, so in previous lecture we have discussed the basic concept of the heat transfer. Okay. Also, we have discussed the mechanisms through which the heat can be transferred from one point to another point. So basically, we have three mechanisms. One is the conduction, second one is the convection, and third one is the radiation. So the rate of heat transferred through conduction is equal to minus K A change in temperature with respect to some distance. Okay, yeah, temperature gradient. This is called the Fourier law of heat conduction. Okay. Also, uh, the heat transfer through convection, yeah, we can say that the rate of heat transfer through convection is equal to unit convectance multiplied by area into surface temperature minus average bulk temperature of the fluid. So that is the rate of heat transfer through convection. Similarly, the rate of heat transfer through radiation is equal to area, or this one. These are the constant, and fourth power are the temperature. Okay, so these are the different equations, yeah, which represent the rate of heat transfer through conduction, convection, and radiation. Okay. Also, in the previous lecture, we have discussed the thermal conductivity, which is the property or ability or characteristics of the material to transfer, yeah, to conduct heat from one point into another point. Okay. Now today we will discuss the steady state heat conductance through plane walls. So see, suppose if we have a single layer wall. Okay, so for example, the length of the wall is, yeah, the thickness of the wall is L. K is the thermal conductivity. The outside temperature is suppose T naught. The inside temperature is suppose T1. Okay, suppose we have a room, या हमारे पास एक structure है. The inside temperature is suppose T1 and outside temperature is T naught. ठीक है, वॉल जो है वो सिंगल मटेरियल से बना हुआ है. So that will be the conductivity of the material. Suppose L is the thickness of the medium. So first here, if we will have some temperature या हमारे पास अगर heat energy है, so that energy will be transferred to the surface of wall through convectance, and inside the medium the heat will be transferred through conductance, and from the surface to the outside environment again here will be convectance. ठीक है. तो सपोज यहाँ पे जो इनसाइड कोएफिशिएंट ऑफ कन्वेक्टेंस है दैट इज सी आई, आउटसाइड जो कोएफिशिएंट ऑफ कन्वेक्टेंस है दैट इज सपोज सी नॉट, और वॉल का जो एरिया है थ्रू विच द एयर थ्रू विच द हीट विल बी ट्रांसफर्ड, दैट एरिया इज ए. Okay, so now the total heat transfer will be equal to area, ठीक है, वॉल का जो एरिया है, multiplied by the total temperature difference T I minus T naught, या T1 minus T naught. Okay, that is the temperature difference, divide by 1 over HI, mean the inside convectance, ठीक है, plus length of the material
डिवाइड बाय इट्स कंडक्टिविटी, ठीक है, एंड प्लस 1 डिवाइड बाय एच नॉट। क्लियर? सो अब इसको हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि हमारे पास अगर एक सिंगल मटेरियल का वॉल है, तो सपोज इनसाइड टेम्परेचर ज्यादा है या आउटसाइड ज्यादा है, जो भी है, देयर विल बी हीट कब ट्रांसफर होगा, इनसाइड से या आउटसाइड होगा, या द हीट विल बी ट्रांसफर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड इफ देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस। सो if there is temperature difference which is T1 minus T naught, the area is this one, then the rate of heat transfer through a plane wall will be equal to this one. Okay, suppose agar T1 T naught se greater hai, so first the heat will be transferred into the surface through convectance, then in the medium through conductance, then from the medium to the outside environment again convectance. ठीक है? Now suppose if the wall is made from more than one layer, then it is called the composite wall. See, normally first we have the plaster of the wall, then we have the main wall which is constructed from blocks or bricks, और फिर outside पे plaster होता है. So that is called the composite wall, mean the wall which consists of more than one type of material. So if a wall is constructed from more than one type of material, then we can say that it will have different conductivities. अगर material different है तो उनकी conductivities different होंगे. अक्सर आप लोगों ने देखे हुए हैं ना कि रूम में inside plaster होता है, फिर bricks होते हैं, फिर outside पे भी plaster होते हैं. So the conductivities will be different. It is called the composite wall. Now we are interested that how much heat will be transferred per unit of time through each component. Okay, and see, for example, हमारे पास अगर ये एक लेयर है, इनसाइड लेयर, ये दूसरा लेयर है, ये तीसरा लेयर है, ठीक है? So suppose that is the inside environment, this one is the outside environment. Suppose the inside temperature is T1, the outside temperature is T0, and if T1 is greater than T0, then the heat will be transferred from inside into outside through these layers. So see, जितना heat first layer को enter होगा, the same amount will be entered into the second layer, the same amount will be entered into the third layer, and the same amount will be transferred into the outside environment. Okay, mean the heat rate in unit area, suppose 1 square feet area में यहाँ पे जितना heat enter हो रहा है वो यहाँ पे enter होगा, वो यहाँ पे enter होगा, वो out चला जाएगा. That is called the steady state heat conductance. Mean there will be no increase in the temperatures of the medium. Okay, so जितना heat inside से इस medium में enter होगा first one में, same heat will be entered into the second medium, same heat will be entered into the third medium, and same heat will be transferred outside. Mean there will be no increase in the temperature of the medium. तो इसको steady state heat conductance कहते हैं. ठीक है? So the heat rate per square feet through each component is constant. ठीक है? और फ्लो जो होते हैं वो सीरीज में होते हैं ना, कि फर्स्ट लेयर से सेकंड लेयर, फिर थर्ड लेयर और फिर आउटसाइड. ठीक है? ये कॉन्सेप्ट है स्टेडी स्टेट हीट कंडक्टेंस का. तो जिस तरह हमने डिस्कस की प्रीवियस स्लाइड में, that the temperature drop through a layer gives this one. See, suppose if we have a single layer, suppose the surface temperature is T1, outside surface temperature is T2. So obviously there will be some temperature difference. Okay, suppose this point is x1, this point is x2. So x1 minus x2, that will be the thickness of the wall. Let A is the area, wall का जो area है, and K is the conductivity of the medium. So as we have discussed that the rate of heat transfer is equal to area
into temperature difference, ठीक है, T1 minus T2 divide by length of the medium या x1 x2 मीन इन दोनों का जो डिफरेंस है ना x2 minus x1 एंड डिवाइड बाय कंडक्टिविटी, ठीक है। तो अगर इसको आप सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगा, या वी कैन से दैट द टेम्परेचर डिफरेंस या द ड्रॉप इन टेम्परेचर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इनटू रेजिस्टेंस। रिमेंबर ये जो टर्म है ना ये एक्चुअल रेजिस्टेंस है, CL डिवाइड बाय KA। ये x2 minus x1 क्या है, दैट इज द थिकनेस ऑफ द मीडियम, ठीक है, मीन मीडियम का जो थिकनेस है, डिवाइड बाय कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया, ये तो कांस्टेंट होगा ना, दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफर टू हीट ट्रांसफर। अगर एक मीडियम है उससे जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो ट्रांसफरिंग ऑफ हीट को कितना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ठीक है। So the drop in temperature will be occur. So the drop in temperature is the product of rate of heat transfer multiplied by resistance. और similarly हमारे पास ये एक इक्वेशन होता है ना कि voltage drop is equal to the current multiplied by resistance। अगर एक मीडियम में करंट फ्लो हो रहा है, so the product of the flowing current to the resistance mean the product of current flowing and resistance is equal to voltage drop। ये कौन सा लॉ है जी? सर ओम लॉ। ओहम लॉ। So see the temperature drop is equal to the rate of heat transfer multiplied by resistance. So this equation is analogous to Ohm's law, ठीक है। ये जो इक्वेशन है ना that is analogous to the Ohm law। So इसको आप जनरलाइज कर देना कि अगर एक मीडियम से हीट कंडक्ट हो रहा है, so there will be some resistance offered by the medium which is equal to the thickness of the medium divided by its conductivity divided by its area। तो आप देखें if the material has higher conductivity तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर मीडियम की सरफेस एरिया ज्यादा हो रेजिस्टेंस कम होगा, ज्यादा हीट कंडक्ट होगा, अगर मीडियम की थिकनेस ज्यादा हो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। सो दिस इज द रेजिस्टेंस व्हिच इज अपर टू द हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्टेंस, ठीक है। तो आप देखें ड्रॉप इन टेम्परेचर डेल्टा टी इज इक्वल टू Q multiplied by R, ठीक है, या we can say that the rate of heat transfer is equal to change in temperature या drop in temperature divided by resistance। So the inverse of resistance is called what? Inverse of resistance क्या होता है? Conductance। ओके, सो इसको फिर हम U से रिप्रेजेंट करते हैं ना। सो द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्टेंस इज इक्वल टू यूनिट कंडक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय ड्रॉप इन टेम्परेचर, एंड देन दिस इज कॉल्ड द न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। अच्छा, नाउ हियर आप भी देख सकते हैं ना जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है थ्रू कन्वेक्टेंस, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू कन्वेक्टेंस, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं ना, चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू Q डिवाइड बाय यूनिट कन्वेक्टेंस मल्टीप्लाइड बाय एरिया। सो अगेन दिस इज एक्चुअल द रेजिस्टेंस, ठीक है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे द हीट कंडक्टेंस थ्रू कंपोजिट वॉल। सो फॉर कंपोजिट वॉल आप देखें सपोज अगर एक वॉल है वो 3 डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ है, द थिकनेस ऑफ द फर्स्ट लेयर इज x1, सेकंड लेयर इज x2, थर्ड लेयर इज x3,
The conductivity of the first layer is K1, second is K2, third one is K3. ठीक है. The surface temperature of the first layer is T1. The outside layer surface temperature is T4. The interface temperature of the first two layer is T2, and the interface temperature of the second and third layer is T3. So see, heat कब conduct होगा? If there is difference between T1 and T2, T2 and T3, T3 and T4. अगर इनके दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस ना हो तो फिर तो हीट कंडक्ट नहीं हो सकता ना. ठीक है, तो ये पॉइंट माइंड में रखिए. ठीक है. नाउ सी, सपोज ये T1 और T4 जो है, दीज आर दी सरफेसेस टेम्परेचर. रिमेंबर, इनसाइड सरफेस टेम्परेचर, आउटसाइड सरफेस टेम्परेचर. नाउ सपोज दिस इज दी इनसाइड इन्वायरमेंट इन द रूम. तो इनसाइड रूम का जो टेम्परेचर है, सपोज दैट इज Ti. आउटसाइड इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर है, दैट इज T0. अब देखिए, फर्स्ट देयर विल बी डिफरेंस बिटवीन Ti and T1. So heat will be convected from the environment into the surface of the wall. Then there will be temperature difference between T1 and T2. So the heat will be convected into the second layer, conducted, sorry. Then there will be temperature difference between T2 and T3. So heat will be conducted into second interface. Then there will be temperature difference between T3 and T4. So heat will be conducted into the outside surface of the wall. Then there will be temperature difference between T4 and T0. So the heat will be convected into the outside environment. So 5 temperatures आ गए, 6 temperatures आ गए हमारे पास. Now the total difference will be Ti minus T0, mean the difference in temperature between the inside environment and outside environment. That total difference will be equal to the difference between inside environment and surface plus the difference between inside surface and first interface plus the difference between these two plus the difference between these two plus the difference between these two. इनका जो डिफरेंस है ना, ये टोटल डिफरेंस के बराबर होगा. नाउ सी, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं that the change, total change in temperature is equal to the change in temperature inside, the change in temperature for the first layer, the change in temperature in second layer, the change in temperature in third layer, and the change in temperature at the outside environment. ठीक है. तो अब हमने जो प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस की, चेंज इन टेम्परेचर किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस. ठीक है. तो अब देखें, यहां पे रेजिस्टेंस क्या होगा? 1 डिवाइड बाय HI, मीन इनसाइड जो कन्वेक्टेंस है ना, मल्टीप्लाइड बाय एरिया. That will be the inside resistance. इस मटेरियल का रेजिस्टेंस क्या होगा? X1 डिवाइड बाय K1 और A. रिमेंबर, एरिया कांस्टेंट होगा ना. एक लेयर है, दूसरा लेयर है, तीसरा लेयर है, तो उनका सरफेस एरिया सेम होगा. द रेजिस्टेंस फॉर द सेकंड लेयर, that will be X2 divided by K2A. Similarly, for third layer, the resistance will be X3 divided by K3 multiplied by area, and the outside resistance will be 1 over H0, mean outside जो convectance होगा. Remember, outside air की जो condition है, that will be different than the inside air condition. ठीक है, mean inside air का जो moment है. See, inside जो convection होगा, that will be a type of natural convection. Inside room में
जो हीट कन्वेक्ट हो रहा है ना फ्रॉम द इन्वायरमेंट इनटू द सरफेस ऑफ वॉल, इट विल बी अ टाइप ऑफ नेचुरल कन्वेक्शन। और उसके लिए कांस्टेंट जो फिर हम लेते हैं नेचुरल कन्वेक्शन के लिए HI 1.65 होता है। ठीक है, ये कांस्टेंट वैल्यू है फॉर द नेचुरल कन्वेक्शन। नाउ इन आउटसाइड इन्वायरमेंट देयर विल बी एयर फ्लोइंग एट सम वेलोसिटी। ठीक है, विंड की कुछ वेलोसिटी होगी। तो आउटसाइड जो H0 है वो नॉर्मली दैट इज टेकन एज अ 6, ये जो कांस्टेंट है ना, कन्वेक्टेंस कांस्टेंट है, and that is the convectance outside the wall for the wind blowing at a speed of 15 mile per hour। ठीक है, आउटसाइड जो एयर ब्लो होता है ना, विंड ब्लोइंग होती है, तो स्टैंडर्डली हम उसको 15 माइल पर आवर लेते हैं। सो एट दैट स्पीड ऑफ द एयर फ्लोइंग द कन्वेक्टेंस विल बी 6। ठीक है, तो अब देखें the total drop in temperature is equal to the temperature drop inside environment, first layer, second layer, third layer, and outside environment. Now we know that the drop in temperature, जिस तरह हमने डिस्कस की ना कि यहाँ पे जो drop in temperature है that will be equal to the rate of heat transfer multiplied by resistance. So resistance इसका क्या है 1/HI और A। सिमिलरली यहां पे जो टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है डेल्टा T2 डेट इज इक्वल टू Q मीन इसका जो थिकनेस है ना, इसका जो लेंथ आप ले सकते हैं, सपोज L1 आप ले लें, डिवाइड बाय K1 एंड A। सिमिलरली यहां पे क्या होगा Q L2 डिवाइड बाय K2A। सिमिलरली इसका क्या होगा Q L3 डिवाइड बाय K3A। सिमिलरली आउटसाइड का क्या होगा Q डिवाइड बाय H0A। ठीक है, तो यहां पे जस्ट वैल्यूज पुट कर लें। अब देखें, समझ आ रहे हैं इसकी? आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर जी, अच्छा जी। मुनीर समझ आ रहा है? मुनीर कहीं? अच्छा ठीक है, तो इसको जस्ट रीअरेंज कर लेना। मीन इन सारे इक्वेशन में पूरा इक्वेशन जो इसमें Q कांस्टेंट है, तो बाहर यहाँ पे जो रह जाएगा इसको यहाँ पे डिनोमिनेटर में लाए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू वी कैन से दैट चेंज इन टेम्परेचर डिवाइड बाय दिस टर्म। और ये क्या है, ये एक्चुअली द टोटल रेजिस्टेंस है, द रेजिस्टेंस अपर टू द कन्वेक्टेंस इनसाइड plus the resistance upper to the convectance in first layer, second layer and third layer, plus the convectance upper in the outside environment. ठीक है, तो जी मुराद सर ये तो जो है ये जो कांस्टेंट है ये आप पहले से क्यों होंगे, आप इसको मालूम करें जी। ये जो टर्म्स है ना के और ये जो है ये आप क्यों होंगे इसको आप आप जब डिजाइन करते हैं ना तो आपको पता होगा ना कि सपोज अगर आप एक कोल्ड स्टोरेज रूम डिजाइन कर रहे हैं, एक रूम है, आपको पता है कि फर्स्ट लेयर कंक्रीट का है, नेक्स्ट लेयर ब्रिक का है, नेक्स्ट लेयर पे आपने कोई हार्डबोर्ड लगाया हुआ है। तो हर मटेरियल के लिए अपने कंडक्टिविटीज होते हैं। वो प्रीवियस लेक्चर में हमने जो एक टेबल डिस्कस किया था 9.1, तो के जो है दैट इज द मटेरियल कांस्टेंट। के मटेरियल क्या है के तो आप वहां से लेंगे ना। एल क्या है, ये लेयर का थिकनेस है, ये भी आपको पता होगा या गिवन होगा कि लेयर का थिकनेस कितना है और उसका सरफेस एरिया कितना है और इनसाइड और आउटसाइड टेम्परेचर कितना है। सो देन यू कैन कैलकुलेट कि इस कंपोजिट वॉल से 1 आवर में कितना BTU हीट जो है वो बाहर जा रहा है।
क्लियर? ये सर मगर कंक्रीट अगर हम बनाते हैं ना सर तो बस की डेंसिटी ज्यादा आ जाती है, बस की कम होती है, तो फिर नहीं, जो स्टैंडर्ड कंक्रीट्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी की वैल्यूज गिवन है, ठीक है, तो उस हिसाब से फिर आप उसकी वैल्यू लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ये जो एरिया है, एरिया टर्म भी कांस्टेंट है, इसको आप बाहर निकाल दें, सो वी कैन से दैट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट एरिया, the rate of heat transfer per unit area is equal to the change in temperature divided by this term, ठीक है। तो अब ये जो है that is the total resistance per unit area, पर यूनिट एरिया पे इतना रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप यहां पे लिख लें, Q डिवाइड बाई A is equal to change in temperature divided by total resistance per unit area. Remember, total resistance per unit area. यहाँ पे ये जो term है ना, that is the total resistance upward per unit area. तो ये इक्वेशन इस तरह आ जाएगा हमारे पास, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि change in temperature, reciprocal of resistance जो है that is convectance, या Q is equal to A U change in temperature, and that is called the Newton law of cooling. This is the most important equation होता है, इसको हम यूज करते हैं in the design of cooled storage houses. कि सी अगर आपने नेचुरली क्या होगा, हीट कब ट्रांसफर होगा, जब इनसाइड की टेम्परेचर और आउटसाइड की टेम्परेचर बराबर हो जाए, देन देयर विल बी नो फर्दर कंडक्टेंस। और कोल्ड स्टोरेज हाउसेस में हमने क्या करना होता है, हमने इनसाइड टेम्परेचर को आउटसाइड टेम्परेचर से कम रखना होता है। सो देन यू विल हैव टू डिजाइन द रेफ्रिजरेशन सिस्टम, कि कितना टन रेफ्रिजरेशन सिस्टम आपने डिजाइन करना है कि इनसाइड टेम्परेचर जो है उसको इस लेवल पे ले आए, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड दी न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। U जो है दैट इज द ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, और दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द यूनिट रेजिस्टेंस, ठीक है, द रेजिस्टेंस अपर टू द हीट कंडक्टेंस इन वन यूनिट एरिया, ठीक है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन है तो लिख सकते हैं। अच्छा जी, CR क्लियर? नफीजुल्लाह जी क्विकली रिस्पॉन्ड किया करेगा, कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता तो फिर उसको मैं यहाँ पे एब्सेंट कर दूंगा, ठीक है। मतलब ये है कि फिर आप लोग प्रेजेंट नहीं है। या इस तरह भी हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इनटू द वॉल, ठीक है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इनटू द वॉल माइनस रेट ऑफ हीट ट्रांसफर आउट ऑफ द वॉल is rate of change of the energy. Yeah, we can say that Q in minus Q out is equal to the change in heat of the wall, ठीक है। ये इक्वेशन आप समझे। सपोज जितना हीट वॉल को इंटर हो रहा है और जितना हीट वॉल से आउट हो रहा है, if there is difference, तो it means that कि वॉल का एनर्जी जो है वो इंक्रीज हुई है, लेकिन according to the concept of the steady state heat conductance, there is no change in the wall temperature. So the temperature entered into the wall, या the heat entered into the wall must be equal to the heat out from the wall. Suppose अगर एक हावर में यहां से 300 BTU इंटर हो रहे हैं, तो एक हावर में यहां से 300 BTU आउट होगा, ठीक है। द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इनटू द वॉल मस्ट बी इक्वल टू द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर आउट ऑफ द वॉल,
ठीक है। तो जी सर इसका मतलब ये है कि वॉल की जो टेम्परेचर है ये कांस्टेंट रहेगी सर? जी, वो उसका टेम्परेचर राइज नहीं होगा, ठीक है। जितना हीट वो गेन कर रहे हैं उतना हीट वो लॉस कर रहे हैं, ठीक है। सर तो एक छोटा ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस। तो यहाँ पे जितना इंटर है उतना वहां पे आउट होगा, उतना वहां पे आउट होगा, उतना यहाँ पे आउट होगा। अब माइक आप क्या करें ना, आपके माइक में बहुत ज्यादा शोर आ रहे हैं। अगर क्वेश्चन है तो आप फिर पूछें। कि अगर एक मीडियम है, एक सिंगल लेयर है, आउटसाइड टेम्परेचर T0 है, इनसाइड टेम्परेचर T1 है, ठीक है। तो इनसाइड से जितना हीट इस लेयर में जा रहा है उतना लेयर आउट जाएगा, बिकॉज देयर इज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सरफेसेस, ठीक है। सो इफ, यहां पे सेंटेंस को आप समझे, इफ the amount of heat entered into the wall is equal to the amount of heat out the wall, that is called steady state conduction। अगर इस तरह नहीं है तो फिर इसको वेरिएबल कंडक्शन कहते हैं। उसकी जो टेक्निकलिटीज है फिर वो बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं। एट दिस लेवल वी आर ओनली डिस्कसिंग द स्टेडी स्टेट हीट कंडक्शन। क्लियर मुराद? ये सर, लेकिन सर अगर जब एक्चुअल में मतलब जब गर्मी होती है ना इसी में कोल्ड स्टोरेज में, तो हम ये कहते हैं मतलब गर्मियों में जब हीट बाहर से आती है ना तो वॉल के जो है वो गर्म हो जाती है, इसकी और टेम्परेचर वो चेंज हो जाती है और अंदर जो है टेम्परेचर कम होती है। सी, इनसाइड इन्वायरमेंट का टेम्परेचर सपोज कम है, आउटसाइड का टेम्परेचर ज्यादा है, तो फर्स्ट टेम्परेचर वॉल पे आएगा, फिर वॉल से इंटर होगा, ठीक है। तो जितना हीट आउटसाइड, अच्छा ये तो आप जो बात कर रहे हैं ना ये नेचुरल कंडक्शन होता है, तो ठीक है। आउटसाइड टेम्परेचर वॉल पे आएगा, वॉल से इनसाइड आएगा, और ये कब स्टॉप होगा? जब तीनों की टेम्परेचर बराबर हो जाए, ठीक है। और जब हम मैकेनिकल हीट कंडक्शन की बात करते हैं तो जितना हीट एक इन्वायरमेंट में इंटर हो रहा है उतना हीट आपने इन्वायरमेंट से आउट करना है। दैट इज कॉल्ड द स्टेडी स्टेट कंडक्शन, कि चेंज इन टेम्परेचर जो है वो ना आ जाए, ठीक है। एक इन्वायरमेंट को आपने एक कांस्टेंट या एक रेफरेंस टेम्परेचर पे रखना होता है ना, तो आउटसाइड से जो टेम्परेचर आ रहा है उतना टेम्परेचर या उतना हीट, एक्चुअली हीट आप इनसे आउट कर ले, ठीक है। और अगर वॉल की टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए ना तो इनकी लेयर्स की टेम्परेचर अगर इक्वल हो जाए तो फिर वहां पे कंडक्शन नहीं होगा, ठीक है। Okay, also we can say that, see that is we are talking about the rate of heat conduction। एक पॉइंट जो है आपका वो क्या बात हम क्या कहते हैं, ये मिसकंसेप्शन जो है, आप टेम्परेचर को ना देखें, आप रेट ऑफ हीट को देखें ना, रेट ऑफ हीट को, ठीक है। रियलिटी में टेम्परेचर भी राइज होगा, लेकिन T1 जितना राइज होगा T2 भी उतना राइज होगा, वो डिफरेंस कांस्टेंट होगा। फिर T2 जितना राइज होगा T3 भी इतना राइज होगा, अगेन द डिफरेंस विल बी दैट कांस्टेंट। एक पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है, रेट ऑफ हीट। एक हावर में फर्स्ट लेयर में जितना हीट इंटर हो रहा है उतना अमाउंट इस लेयर, इस इंटरफेस से इंटर होगा, सेम अमाउंट 1 आवर में यहां से इंटर होगा। दैट इज द स्टेडी स्टेट हीट कंडक्टेंस। अच्छा, द रेट ऑफ हीट कन्वेक्टेड इनटू द वॉल इज इक्वल टू the rate of heat conducted through wall 1 is equal to the rate of heat conducted through wall 2 is equal to the rate of heat conducted through wall 3 is equal to the rate of heat convected from the wall। ठीक है, ये भी एक स्टेटमेंट है उसका। एंड जनरली हमने जो कंक्लूड किया, that is the rate of heat conductance through a composite wall is equal to the unit conductance, which is the reciprocal of the resistance multiplied by area multiplied by change in temperature।
ठीक है, या वी कैन से दैट Q इज इक्वल टू एरिया डेल्टा T डिवाइड बाय द रेजिस्टेंस। अगर इसको फर्दरली कर लें, सो द रेट ऑफ हीट कंडक्टेड थ्रू अ कंपोजिट वॉल is equal to area change in temperature between the inside environment and outside environment divided by 1 over HI, the inside convectance, plus the thickness of the first layer and its conductivity, plus the thickness of the second layer divided by its conductivity, and so on. जितनी भी लेयर है, 3 लेयर है, 4 लेयर है, at the end plus 1 over H naught outside convectance. Just ये इक्वेशन आप अपने माइंड में रखें, ठीक है। That is the steady state conduction for the composite wall. And remember, if the layers are in series, first layer है, दूसरा layer है, तीसरा layer है, चौथा layer है, that is the rate of heat conduction when the for the multi-layer plane wall इन सीरीज, ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल है, द एक्सटीरियर वॉल ऑफ अ कूल रूम 16 फीट लॉन्ग एंड 9 फीट हाई, ठीक है। एक वॉल है ना, 16 फीट उसका लेंथ है और 9 फीट उसका हाइट है, तो एरिया क्या होगा 16 मल्टीप्लाइड बाय 9, ठीक है, या 144 स्क्वायर फीट जो है उसका सरफेस एरिया है। नाउ दैट इज वन वॉल। अब अगर एक रूम है उसके 4 वॉल्स हैं तो उसकी आप डायमेंशनिंग कर सकते हैं कि टोटल एरिया कितना होगा, ठीक है। अब आउटसाइड अब ये वॉल जो है दैट इज बिल्ट फ्रॉम 6 इंच ऑफ कंक्रीट, फिर 4 इंच का कॉर्क है, ठीक है, कोई हार्डबोर्ड टाइप की मटेरियल है, और फिर 3/4 इंच की सीमेंट लेयर है। 3 लेयर से बना हुआ है ये वॉल, ठीक है। इस तरह 3D में आप देखें इसको। अच्छा, द आउटसाइड टेम्परेचर जो है दैट इज 80 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इनसाइड रूम का टेम्परेचर क्या रखना है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। सो दैट इज द टेम्परेचर डिफरेंस, या inside temperature is 0, outside temperature is 80. Now requirement क्या है, we have to find out that how much heat will be entered into the room. बाहर टेम्परेचर 80 है, inside टेम्परेचर 0 है, तो बाहर से inside ट्रांसफर होगा ना। अब अगर आपने कूल स्टोरेज का 0 रखना है तो जितना हीट रूम के अंदर आ रहा है आप उतना एसी इंस्टॉल कर ले, रेफ्रिजरेशन इंस्टॉल कर ले कि वही हीट आप इनसाइड से बाहर कर ले, तो इनसाइड का जो टेम्परेचर है दैट विल बी मेंटेन्ड कांस्टेंट, ठीक है। तो अब देखें, नाउ वी हैव 3 डिफरेंट मटेरियल्स, सो द कंडक्टिविटीज फॉर द कंक्रीट, कॉर्क एंड प्लास्टर्स आर 0.54, 0.025 एंड 0.55, ठीक है। तो जिस तरह हमने डिस्कस की ना, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर is equal to area multiplied by change in temperature divided by 1 over HI, ठीक है। एक साइड पे सपोज अगर ये आउटसाइड एयर है ना, तो मोस्टली आउटसाइड वी आर टेकिंग द स्पीड ऑफ द विंड ब्लोइंग 15 माइल पर आवर, तो उसका जो कन्वेक्टेंस होगा वो 1 over 6 होगा, ठीक है, प्लस लेंथ डिवाइड बाय कंडक्टिविटी। तो लेंथ कितना है 6 इंच है, इसको 12 पे डिवाइड कर ले कि फीट में कन्वर्ट हो जाए। यूनिट का ख्याल रखें, इस इक्वेशन में लेंथ फीट में होगा, टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में होगा, एरिया स्क्वायर फीट में होगा, और कंडक्टिविटी BTU पर आवर स्क्वायर फीट फ़ारेनहाइट स्क्वायर फीट में होगा, ठीक है, पर फीट में। सिमिलरली दैट इज द लेंथ ऑफ कंक्रीट divided by its conductivity plus length of the cement plaster divided by conductivity plus 1 over inside convectance which we are taking 1.65। इसको जस्ट आप सिंप्लीफाई कर लें, इसका मतलब ये है कि 1 आवर में 760 BTU जो है
heat will be transferred from the outside into inside. Is it clear? Shafahat Faraz. Yes, sir. जी नूर इस्लाम. Sir, जी the 1.65 dam table in Tasarawa. It's यार not. मतलब स्टार्ट हुए करना तो सो टाइम मांगे गो रही ना. See, inside environment से surface of wall पे या surface of wall से inside environment यहाँ पे क्या होगा? Convectance होगा. तो inside the room जो convectance होते हैं वो natural convectance होता है और उसका जो constant है inside convectance का that is 1.65. ठीक है. Outside air से to the wall जो heat transfer होगा again that will be convectance, but outside the room there will be different condition of the convectance based on the speed of the air blowing. So normally we are taking for 15 mile per hour wind speed the convectance हम इसके लिए 6 लेते हैं 6 लेते हैं. अब क्लियर हो गया? Yes, sir, clear out. अच्छा. Okay, thank you. Now second question जो है that is find out the temperature of the concrete cork interface. ठीक है. See हमारे पास 3 layers थे ना. One was the concrete, then we have the cork, then we have the cement layer. Outside temperature is 80, inside temperature is 0. So first we have to determine that there will be 760 BTU of heat transferred in 1 hour. Okay. Now the second question is to determine the temperature of the concrete cork interface. ठीक है कि इस इंटरफेस का टेम्परेचर क्या होगा? इस इंटरफेस का क्या टेम्परेचर? आउटसाइड 80 है ना, इनसाइड 0 है. तो इन लेयर्स के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस होगा ना, तभी तो हीट ट्रांसफर हो रहा है. Now see, the temperature drop from the outside to the concrete cork interface is proportional to the resistance. यहाँ पे 80 है ना और इतने रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पे जो है 0 है, तो इस पॉइंट तक कितना रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है. ठीक है. या यहाँ पे आप देखें ना, इस साइड से कितना रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, इस लेयर का रेजिस्टेंस कितना है. तो यहाँ पे एक कंक्रीट का लेयर है, इट्स रेजिस्टेंस इज दिस वन. ठीक है. दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंक्रीट लेयर पर यूनिट एरिया which is 0.928 and outside environment का जो resistance है that is 0.167 inside environment का. So the total resistance from this interface into the inside environment that is 1.094. ठीक है. तो अब देखिए, अगर टेम्परेचर 80 से 0 तक, इसके लिए टोटल रेजिस्टेंस ये है. द टोटल रेजिस्टेंस offered to the temperature drop from 80 to 0 is this one, and the resistance at this point is 1.094. तो इसका टेम्परेचर क्या होगा? समझ आ रहे हैं? सी इस तरह भी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे टोटल ड्रॉप कितना है, 80 है. इसको कितना रेजिस्टेंस अपर हो रहा है? ये टोटल रेजिस्टेंस दैट इज 15.157. If the temperature drop is 80 degree Fahrenheit, the resistance occurred is 15.157. Now, if the resistance is 1.094, then how much will be the temperature drop? यहाँ पे temperature drop कितना होगा? So इसको अगर आप कैलकुलेट कर लें, you will get 5.8 degree Fahrenheit. 5.8 degree Fahrenheit. तो अब अगर टोटल ड्रॉप 80 है, यहाँ पे 5.8 है, तो इस इंटरफेस का जो टेम्परेचर होगा
that will be 74.2 degree F. Is that clear? Yes sir. अच्छा मंजूर क्लियर? मंजूर अहमद? यस सर क्लियर है। तो ये जो हमने डिस्कस की that was the steady state heat conduction through multi-layer walls, but the layers were in series. अब सपोज अगर लेयर जो है वो पैरेलल हो, ठीक है, सपोज अगर एक वॉल है, ठीक है, उसका टोटल हाइट सपोज 10 फीट है. फॉर एग्जाम्पल the lower 5 feet is constructed from blocks and the next 5 feet is constructed from bricks. समझ आ रहे हैं ना? कि आधा वॉल जो है आप ब्लॉक से कंस्ट्रक्ट कर लें और उसकी ऊपर फिर आप ब्रिक्स लगाएं. So now that will be the layers in parallel. So यहां पे ब्लॉक से सपोज अगर आपने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, so suppose its conductivity is K1, its conductivity will be K2. Okay, suppose its area is A1, its area is A2. ठीक है, सपोज अगर लोअर लेयर जो है वो आपने 3 फीट कंस्ट्रक्ट किया हुआ है और ऊपर लेयर 7 फीट है, लेंथ तो सेम है लेकिन हाइट डिफरेंट है, तो उसका एरिया भी डिफरेंट होगा. नाउ सपोज द आउटसाइड टेम्परेचर इज T2 and the inside temperature is T1. So the total heat transferred will be equal to the heat transferred through one layer plus the heat transferred through another layer. ठीक है? Yeah, the rate of heat transfer will be equal to Q1 plus Q2. 2 लेयर्स है ना, लोअर एक लेयर है, उसके ऊपर दूसरा लेयर है, तो एक लेयर से जितना हीट ट्रांसफर होगा और दूसरी लेयर से जितना हीट ट्रांसफर होगा इन यूनिट ऑफ टाइम, दैट विल बी द टोटल रेट ऑफ हीट ट्रांसफर. ठीक है, सो द टोटल रेट ऑफ हीट ट्रांसफर विल बी इक्वल टू T1 माइनस T2 डिवाइड बाय द थिकनेस. सपोज द थिकनेस इज, अगर थिकनेस सेम है दोनों के लिए, L डिवाइड बाय A1 K1 प्लस T1 माइनस T2, बिकॉज द इनसाइड एंड आउटसाइड टेम्परेचर डिफरेंस दोनों लेयर के लिए सेम है, ओनली उनकी कंडक्टिविटीज डिफरेंट होंगे और उनका सरफेस एरिया डिफरेंट होगा. सो दैट विल बी द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर if the layers are in parallel. ठीक है, और फिर उसके साथ आप वो भी ऐड कर सकते हैं कि अगर इसका इंटरफेस टेम्परेचर क्या है, आउटसाइड इंटरफेस टेम्परेचर क्या है. ठीक है, तो फिर फर्स्ट द हीट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम इनसाइड एनवायरनमेंट इनटू द सरफेसेस, देन द हीट विल बी कंडक्टेड इनसाइड द मीडियम्स, then the heat will be convected from the outside surfaces into the environments. ठीक है, तो अगर इनसाइड टेम्परेचर Ti है, इस सरफेस का टेम्परेचर T1 है, आउटसाइड सरफेस का टेम्परेचर T2 है और आउटसाइड इन्वायरमेंट का टेम्परेचर T0 है, then you will have also add here Ti minus T1 divide by 1 over Hi into A1 plus A2. ठीक है, दोनों सरफेसेस की एरिया पे जो हीट ट्रांसफर हो रहा है, और प्लस T2 माइनस T0 मीन आउटसाइड जो कन्वेक्टेंस हो रहा है ना, 1 ओवर H0 into A1 plus A2, या द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बोथ मीडियम से जो कन्वेक्टेंस हो रहा है. Is it clear? क्लियर हो गया? अली रजा, जी. मुराद क्लियर?
जी सर। Now see, suppose if there is the combination between the series and parallel, जिस तरह हमने डिस्कस की ना, सपोज अगर आपके पास एक वॉल है, the lower portion is constructed from blocks, the upper portion is constructed from bricks, और इसको ये एक लेयर हो गए ना, ये दोनों एक ही लेयर हो गए। अब आउटसाइड से आप उसकी प्लास्टरिंग कर दें, ठीक है, समझ आ रहा है? तो ये फर्स्ट लेयर जो है, ये तो दो लेयर है ना पैरेलल, और उसके साथ एक लेयर इन सीरीज है, तो दैट इज द मल्टी लेयर प्लेन वॉल, जो कॉम्बिनेशन है सीरीज का एंड प्लास्टर का। ठीक है, लोअर पोर्शन सपोज दैट इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ब्लॉक्स, द अपर पोर्शन इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम ब्रेक्स, और इनसाइड से या आउटसाइड से आप उसकी पूरा सरफेस एक ही मटेरियल से सपोज प्लास्टरिंग कर लें, हार्डबोर्ड लगाएं, प्लास्टिक कवर्स लगाएं, तो ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा सीरीज और पैरेलल का। सो देन द टोटल हीट ट्रांसफर will be equal to, suppose this is one material, this is two material, और ये three material है, third material है। So the rate of the total heat transfer will be equal to the heat transferred in 1 and 2, the heat transferred in 1 and 2, and that will be equal to the heat transferred in 3। ठीक है, इनसाइड से इन दो लेयर्स में जो हीट इंटर होगा वो थर्ड लेयर में चला जाएगा, और वो लेयर जो है वो हीट जो है वो आउट होगा, जो प्रीवियसली हमारा एक कॉन्सेप्ट था, इसको आप इस तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो वी कैन से दैट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, सपोज अगर इनसाइड टेम्परेचर T1 है, इन दोनों की सरफेसेस का सपोज इनसाइड टेम्परेचर Ti है, इन दोनों की सरफेसेस का टेम्परेचर T1 है, द इंटरफेस जो है तीसरी लेयर के साथ सपोज दैट इज T2, आउटसाइड सरफेस का टेम्परेचर T4 है, और आउटसाइड इन्वायरमेंट का टेम्परेचर T0 है। ठीक है, ये सपोज T3 है। नाउ द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इट विल बी इक्वल टू Ti minus T1 divided by 1 over Hi into the total surface area। ठीक, ये the heat transfer from the inside environment into the surface of this parallel layers, ये होगा ना। Now plus the heat transferred in these two, that will be equal to what? T1 minus T2 divided by conductivity of one material, thickness of one material divided by conductivity of that material and its area, plus the heat transferred in another medium, ये जो ऊपर है पैरेलल जो है उसका थिकनेस भी L1 के बराबर होगा, या इसको आप L2 रख ले, इन दोनों सेम होंगे, बट कंडक्टिविटी विल बी डिफरेंट एंड एरिया विल बी डिफरेंट, दैट इज एरिया 2। ठीक है, दिस मच हीट विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम दी थ्रू दीज टू पैरेलल लेयर जो हमने प्रीवियस डिस्कस की ना, प्लस द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द through the third layer which is in series, so it will be T2 minus T3 divided by उसका thickness suppose L3 है, its conductivity is K1 and again its area will be the total area। ठीक है, ये दोनों layers को कवर कर रहे हैं ना बाहर से, और प्लस the outside convectance which is T3 minus T0 divided by 1 over
H naught or area. Okay, so that will be the, we can say that the total conductance in unit of time through a multi-layer plane was, which is a combination of both series and parallel. Clear? जी जुल्करनैन, कोई क्वेश्चन है? आपने हैंड रेज किया हुआ है। सर क्लियर हो गई बस। अच्छा, क्लियर नफीजुल्लाह? सीआर आप एब्सेंट है ना स्टार्ट से? ओके, आप देखिए द स्टेडी स्टेट कंडक्शन थ्रू सिलेंडर्स, सिलेंडर्स है ना, सपोज द इनसाइड टेम्परेचर इज T1, outside temperature is T2, so how the heat will be transferred? So again the concept is same, that if it is a material, so it will have some conductivity, it will have some surface area, there is temperature difference, okay, and see the thickness of the medium. So we can say that the rate of heat conductance is equal to the material conductivity, its area, and the change in temperature with respect to the change in the thickness. So just वो लेंथ की बजाय आप रेडियस ले लें, टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है, या इस इक्वेशन को अगर आप सिंप्लीफाई कर लें, so change in temperature या drop in temperature is equal to Q divided by K. इसका ये एरिया कितना होगा, मीन दैट इज द सरकम्पेरेंस ना, मल्टीप्लाइड बाय द लेंथ, तो ये इसका जो इनसाइड पूरा एरिया है ना वो एरिया आ जाएगा। मीन सरकम्पेरेंस क्या होता है, 2 पाई r होता है, ठीक है? नहीं, एक्चुअली सी अगर इस सिलेंडर को आप ओपन कर लें, सिलेंडर को ओपन कर लें, या तो आपके पास इस तरह एक शीट आ जाएगा ना, तो इसका ये क्या होगा, 2 पाई r होगा, और इसका हाइट कितना है, सपोज दैट इज l, तो 2 पाई r मल्टीप्लाइड बाय l, आपके पास इसका सरफेस एरिया आ जाएगा, सो दैट इज 2 पाई l और r, और यहाँ पे क्या है, dr. Now see, rate of heat is constant, conductivity is constant, height is constant. There is only the difference in the thickness या in the radius. तो इसको आप जो है इंटीग्रेट कर लें, इनसाइड रेडियस R1 है, आउटसाइड रेडियस R2 है ना, रेडियस चेंज हो रहा है R1 से R2 तक, टेम्परेचर जो है दैट इज चेंजिंग फ्रॉम, सपोज आउटसाइड T2 है, इनसाइड T1 है, सो दैट इज चेंजिंग फ्रॉम वी कैन से दैट T1 टू T2. तो इसको अगर आप इंटीग्रेट कर लें, सो यू विल गेट T2, यहाँ पे वो माइनस साइन था ना, तो उसको यहाँ पे आप इनकॉर्पोरेट कर ले, तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू, इसका लॉग में आ जाएगा ना, ठीक है, और फिर आप उसमें जो लिमिट्स पुट कर लेंगे, सो एट द एंड यू विल गेट दिस वन, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू, समझ आ रहे हैं? एक्सप्लेन कर दूं इस इक्वेशन को, जस्ट मैथमेटिकल इक्वेशन है, क्लियर है? यस सर, क्लियर है। अच्छा, जस्ट ले उसमें इंटीग्रेशन ले लेना कि इनसाइड टेम्परेचर T1 है, आउटसाइड टेम्परेचर T2 है, तो टेम्परेचर इज चेंजिंग फ्रॉम T1 to T2 एंड द थिकनेस ऑफ द सिलेंडर इज चेंजिंग फ्रॉम R1 to R2, ठीक है? या आल्सो हम इसको फिर ये लॉग को खत्म करने के लिए फिर एक जनरलाइज इक्वेशन ये भी है, that the rate of heat transferred through a hollow cylinder is equal to 2 pi rm. N is the, remember that is the height of the cylinder, the length of the cylinder. K is the material conductivity, that is the temperature difference, and this is the wall thickness. Rn जो है ये mean क्या है, रेडियस है, ठीक है, और ये इसकी भी बराबर है। अगर सपोज आपके पास एक सिलेंडर है, उसकी वॉल का थिकनेस होगा, इनसाइड रेडियस क्या है, आउटसाइड रेडियस क्या है,
इसको इसमें पुट कर ले, यू विल गेट RM, ठीक है, एंड देन यू कैन फाइंड आउट द हीट कंडक्टेंस थ्रू सिलेंडर. And now see, if the cylinder is made from different layers, suppose अगर एक सिलेंडर है ना, इनसाइड एक सिलेंडर है, आउटसाइड इसको आपने कवर किया हुआ है, जिस तरह आप लोगों ने देखी भाई ये जो क्या कहते हैं उसको, थर्मास, इनसाइड उसमें एक शीशा लगा होता है, आउटसाइड भी उसका कवर होता है ना प्लास्टिक का, तो मल्टी लेयर्स के होते हैं. तो अगर इनसाइड उसमें लिक्विड है ना, तो उस लिक्विड से इनसाइड वॉल तक कन्वेक्टेंस होगा, फिर इनसाइड कंडक्टेंस होगा, फिर कंडक्टेंस होगा, फिर इनसाइड से आउटसाइड कन्वेक्टेंस होगा. सो मल्टी लेयर का कॉन्सेप्ट बन जाते हैं. अगेन देयर विल बी डिफरेंस इन रेजिस्टेंसेस, लेकिन ओवरऑल आप जो उसका कंडक्टेंस पर इस तरह फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, आप ये देखें, जस्ट एक एग्जांपल है, स्टीम is flowing in a pipe actually that is resemblance like that of the hollow cylinder. So एक पाइप में 320 डिग्री सी पे स्टीम फ्लो हो रहा है, और आयरन उस पाइप जो है उसकी कंडक्टिविटी क्या है, 80 वॉट पर मीटर पर डिग्री सी पर यूनिट स्क्वायर यूनिट एरिया. इनर एंड आउटर डायमीटर जो है 5 सेंटीमीटर और 5.5 सेंटीमीटर है. इन R1 is 5 सेंटीमीटर, R2 is 5.5 सेंटीमीटर, D2 sorry. And the pipe is covered with a 3 centimeter of thick glass wool insulation. अब एक पाइप में इतने हाई टेम्परेचर पे स्टीम आप फ्लो करे तो आपने उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करना होगा. ये इस तरह नहीं है कि उसका टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस हो जाए. So the pipe is covered with an insulation glass of 3 सेंटीमीटर थिकनेस. ठीक है, 3 सेंटीमीटर उसका थिकनेस है. अब देखें इनसाइड रेडियस कितना था, 2.5 सेंटीमीटर, दैट इज द डायमीटर. सो द इनसाइड रेडियस विल बी 2.5 सेंटीमीटर. R2 विल बी, ये गिवन है 2.75 सेंटीमीटर होगा ना. R3 क्या होगा जी, R3 क्या होगा, R2 जो है दैट इज 2.75, फिर 3 सेंटीमीटर उसके साथ थिकनेस है, तो R3 इज 5.75 सेंटीमीटर टोटल रेडियस होगा. ठीक है, ये पॉइंट समझे. नाउ हीट इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग, जो बाहर जो नेचुरल कन्वेक्शन हो रहे हैं या सराउंडिंग के जो टेम्परेचर है 5 डिग्री सी, और बाहर जो कन्वेक्टेंस है ना H2 दैट इज 18, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इनसाइड जो कन्वेक्टेंस है दैट इज 60. Now determine the rate of heat loss from the steam per unit length. समझ आ रहा है कि एक पाइप है ना, उससे 1 मीटर में कितना हीट बाहर जा रहा है. इनसाइड टेम्परेचर इज 320 डिग्री सी, आउटसाइड टेम्परेचर इज 5 डिग्री सी, इनसाइड कन्वेक्टेंस इज 60, outside convectance is 18, and the pipe is made from 2 material. The pipe conductivity is 80, the insulated material conductivity is 0.05. कर सकते कि नहीं, कर सकते हैं सर. जस्ट मैं आप लोगों को यहाँ पे ये इनकी नोटेशंस डिफरेंट है, इनके साथ आप जस्ट कंफ्यूज ना हो जाए. सो सी दी रेट ऑफ हीट लॉस जो है that will be equal to the temperature difference, ठीक है, which is 320 minus 5 degree C divided by the resistance of the inside convectance, so which is 1 over
HI, तो इनसाइड जो कन्वेक्टेंस है वो तो गिवन है, दैट इज 60 मल्टीप्लाइड बाय एरिया होता है ना हमारे पास। सो एरिया क्या होगा, 2 पाई इनसाइड का जो एरिया है ना R1, और हम लेंथ मल्टीप्लाई करते, यहाँ पे गिवन है कि आप पर यूनिट लेंथ कर ले तो यहाँ पे लेंथ 1 यूनिट होगा, तो 1 की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस दी, यहाँ पे हमने जो इक्वेशन किया हुआ है यार, इसी पे जस्ट आप वैल्यूज पुट कर लें। R1 गिवन है, R2 गिवन है, मीन ये टर्म नहीं होगा ना, 2 लेयर्स है, दोनों की कंडक्टिविटीज भी गिवन है, R2 R3 R1 गिवन है, HI और H0 is also given, TI is 320 डिग्री, T0 is 5 डिग्री, और यहाँ पे n जो है 1 आप ले लें बिकॉज यूनिट लेंथ के हमने फाइंड करना है। सो एट द इन यू विल गेट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। ठीक है, HI जो है ये गिवन है 60 था, H0 जो है ये 18 है, तो सारी वैल्यू पुट कर ले, यू विल गेट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, लास्ट वन जो है, सपोज अगर एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हो तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट से हीट किस तरह कंडक्ट होता है। ठीक है, इफ वी हैव अ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, सो अगेन अगर एक बॉल है ना, बॉल को आप माइंड में रखें तो उसका एक इनसाइड रेडियस होगा, एक आउटसाइड रेडियस होगा। सपोज द इनसाइड टेम्परेचर इज T1, आउटसाइड टेम्परेचर इज T2। So directly आप just mind में रखिए कि the rate of heat transfer is equal to the change in temperature divided by resistance। वही equation है ना, rate of heat transfer is equal to the temperature difference divided by resistance। So spherical object का जो resistance होते हैं that is R1 minus R2 divided by 2 pi K, where K is the conductivity, R1 R2। ठीक है, so that is the rate of heat transfer through a spherical object। ठीक है, अगेन ये जो होता है ना, इसके साथ आप कंफ्यूज ना हो जाए कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो है ये हमारे पास किसके बराबर होता है, एरिया, कंडक्टिविटी, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन यूनिट थिकनेस। तो थिकनेस अगेन यहाँ पे रेडियस आ जाएगा ना, इनसाइड रेडियस है और आउटसाइड रेडियस है। ठीक है, तो फिर इसको मीन अगर आप देख लेना, Q इज इक्वल टू स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का जो एरिया होता है वो 4 पाई R स्क्वायर होता है, 4 पाई R स्क्वायर, एंड दैट इज कंडक्टिविटी dt डिवाइड बाय dr। तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई कर लेना, dr यहाँ पे आ जाएगा R स्क्वायर एंड इज इक्वल टू K डिवाइड बाय 4 पाई एंड Q और dt, ये रह जाएगा। अब इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, T1 to T2 एंड दी रेडियस इज फ्रॉम R1 to R2। ठीक है, इसको जब आप सिंप्लीफाई कर ले, सो एट द इन यू विल गेट दिस इक्वेशन। सो दैट इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू स्फेरिकल ऑब्जेक्ट।